Good evening. Warm welcome on behalf of Diabetes Awareness and You Day to all the audiences who are always with us. Today we have another session of Type 1 Diabetes Virtual School. And today's topic is how CGM helps in Type 1 diabetes management. We are pleased to welcome Ms. Bhuvaneshwari Raghavan. She is a senior dietitian and certified type 1 diabetes educator at Dr. Mohan's Institute Diabetes Specialist Center with two article contribution to the Indian Diabetes Educator Journal, including emotional and physical health in women and diabetes. She is the co-author of a research paper on outcomes of metabolic surgery in obese type 2 diabetes people, published in Diabetes and Metabolic Syndrome Clinical Research and Reviews. Thank you, ma'am. Uh, please start the session. Thank you so much, Suparna, for the introduction. And thank you, Dave, for giving me the opportunity to participate in this. We'll be seeing what is CGMS, how CGMS is going to help us in dosage adjustment, and what are the limitations of CGMS, and why CGMS is considered more flexible than the self-monitoring of blood glucose. This is what we are going to see. Okay, first slide. So initially, when I started practice as dietitian in 2004, we didn't have any CGMS. We just had the glucose monitoring system. That time widely used. I wouldn't say that sensor was not available. Sensor was way much was there. It was from 1999, but it was not that popularized. All type 1 diabetics used to check their blood glucose through the self monitoring of blood through the glucometers, and even the glucometers was pretty costlier that time compared to what it is now, and even the sensor is cheaper comparatively. Next slide. So how did this sensor evaluation started? Initially, when we were in 1700s, we were doing the sugar testing with the urine tasting. Then a little bit more scientific evaluation came, and in 1900s we started having the urine strips, and then we were checking it up. Then in 1977 we started with the revolution of glucometers. The first glucometer was too huge. I recently saw the first ever developed glucometer, and it was that huge actually. The idea of glucose sensor, to check continuously, started in 1999, and Minimed Medtronic was the first ever developed sensor. Then now recently we have started developing with real-time monitoring. Before we were using only flash time monitoring. I'll just tell you the difference between both in the coming slides. Can I move to the next slide? So I'm sorry for the break. Okay, so in 1970s to 1980s, like I already said, the concept of implantable glucose sensor started. And in 2000, we had the first ever commercial CGMS, which was approved by the FDA. And in 2005, technology started improving very dramatically. And in 2020s, now we have the highly affordable, highly accurate, widespread adoption of glucometers. Next slide. So why are we not checking with SMBG, self-monitoring of blood glucose? Why are we going towards continuous glucose monitoring? Any idea?
why we are using a self-monitoring of blood glucose and what are the differences with CGMS? Okay. See, self-monitoring of blood glucose, why it is not appreciated was the maximum that we can prick it was only 6 times. We can do fasting, okay, postprandial, before lunch, before dinner, after lunch, after dinner, sometimes in the random. So maximum that I can prick myself was 8 times or 7 times. We cannot keep pricking because it will keep paining. So these are the limitations of self-monitoring of blood glucose. But whereas what does CGMS give me? What is a continuous glucose monitoring give me? Why is it so superior to the SMBG is it tells you the glucose reading even when you are sleeping. It gives you glucose reading every 1 minute. The advanced one will give you every 1 minute, which self-monitoring of blood glucose, I mean, it doesn't happen in SMBGs. Next slide. So as I said to you, there are two type of glucose CGMS that was available. One is the flash glucose monitoring system. The other one was real-time continuous glucose monitoring system. What is the difference between both of it? Flash glucose monitoring system in the sense we have to take the reader, keep it on top of the sensor. Every time we have to flash so that from the sensor to the reader, the reading is getting transmitted. Real-time glucose monitoring system is like you have direct access to the glucose value, like you have a transmitter wherein it is getting transmitted to the mobile directly. And until the Liberate 2 Plus was introduced, we were having, we didn't have alarms for high blood sugar and low blood sugar, which real-time glucose monitoring had. So this was the difference between the flash glucose monitoring and the real glucose monitoring. And the two real glucose monitoring that is available is one is Guardian and the other one is Dexcom. That also I'll just compare and I'll tell you what it is. Next slide. So real glucose monitoring system is sometime, I mean, it is the one which is inserted in the abdomen, sometime on the thighs. But flash glucose monitoring, you can insert it on any part of your hand, particularly. So it has more places wherein you will do it. So these are the various continuous glucose monitoring available in the market. Next slide. There is something called as MARD. What is MARD basically? Okay, MARD is the any electronic device do have certain deviations. Like for example, when I check with glucometer, with the blood glucose that's there through the venous blood and to the blood glucose which is there in the sensor or through the strip, there is a deviation. So how much deviation can happen? How all the interference can happen? Like for example, I put the sensor and unknowingly I'm sleeping on the hand wherein I'm putting the sensor and I'm giving so much of pressure. जैसा आप pressure बहुत ज्यादा दे रही हैं तो उसी समय में आपको compression artifact होते हैं. Compression artifact में आपका थोड़ी सी deviation हो सकते हैं. तो सेंसर कंटिन्यूअस ग्लूकोज सेंसर्स में आपको जैसा परसेंटेज एरर आ सकते हैं. तो गार्डियन रियल टाइम में 12% डिविएशन होते हैं, डेक्सकॉम सेंसर में 9% और बाकी सभी आपका 12 to 14% डिफरेंस होते ही रहेगी आपको. और जब आपका वीनस ब्लड ग्लूकोज और सेंसर को आप देख रहे हैं तो सेंसर 15 मिनट्स लैगिंग पीरियड, मतलब मेरी फर्स्ट ब्लड ग्लूकोज रेज होते हैं उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होते हैं मैं फ्यूचर स्लाइड्स में बोल दूंगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आपका जब आपका शुगर्स ज्यादा होते हैं ना, पहले आपका कैसा किधर ज्यादा हो रही है, ब्लड ग्लूकोज में होगी. तो ब्लड ग्लूकोज में 150 है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसी समय, मतलब the engine is blood glucose
The last carriage of the train is interstitial fluid. So first it will rise in the engine, that is the blood glucose. And when it comes to the interstitial fluid, there's a lagging period that is around 15%. So compared to blood glucose and the sensor glucose, there is always a 20 or more than 20% difference. That is why it is very much important. If you have, like, I will give you with an example. If you see low glucose in the sensor, just check once with the glucose that is there on your finger prick. If you do not have any symptom at all, then take the corrective action. If suppose sometimes the sensor will keep showing you low sugar, but wherein you will not have symptom at all, so that time one calibration. What does calibration means? Next slide. Suparna, just go 2 slides later. This comparison I'll come little later. Okay, so what does calibration mean? Calibration in the sense, for example, I need to check my sensor glucose and blood glucose. As I said, there is a difference between the sensor glucose and blood glucose. So how will I be able to understand? When best time to check is before meals. Like say, where you have to check the sensor glucose. You prick yourself, write the value. At the same time, check with your sensor also. See what is the difference between both the blood glucose. If it is a very huge variation, like say your sensor glucose is somewhere around 240, but your blood glucose is showing just 120, then it is a huge variation. So you need to call the company person and then calibrate it. Certain sensors are there like Dexcom, wherein you'll be able to calibrate it within the machine. But Liberate 2 Plus, the one that is from Abbott, we do not have calibrations at all. So if there is a wide variation, we need to call the company person and change the sensor. Go to the previous slide, Sparna. So these are the available sensors in the market. So what is the minimum age for any sensor that, as per ISPAD recommendation, we start the sensor from above Ma'am, the age of hello, 5 years ma'am. itself. Sorry to interrupt, ma'am. Participants requesting to explain in Hindi. Okay, no If problem. Okay. possible, please. Yes, No yes. problem, no problem. मेरी Okay. हिंदी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपको. No Okay. problem, no problem. ओके जैसा मैं बोल रही थी, आपका जो सेंसर है ना, आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा. क्यों कैलिब्रेशन करना पड़ेगा? मुझे सेंसर मतलब मेरी ब्लड ग्लूकोज और मेरी सेंसर का ग्लूकोज में वाइड वेरिएशंस होते हैं. मेरी ब्लड ग्लूकोज फर्स्ट पहले आपको इंक्रीज होते हैं, उसके बाद सेंसर का ग्लूकोज में इंक्रीज होते हैं. तो ये डिफरेंस देखने के लिए क्यों देखना पड़ेगा? अगर मुझे सेंसर में मैं चेक करती हूँ, मुझे लो शुगर आ रही है, मतलब मुझे लो शुगर का सिम्टम कोई भी नहीं है, तो मैं एक स्ट्रिप से चेक करना पड़ेगा. तो कितने बार चेक करना पड़ेगा? ट्वाइस इन अ वीक और समथिंग, जैसा आप चेक कर सकते हैं. कोई मतलब किसी सेंसर्स हैं, वो सेंसर्स में आप कैलिब्रेशन ट्वाइस अ डे करना पड़ेगा. फ्री स्टाइल लिब्रे में आप कैलिब्रेशन कर नहीं सकती. तो मेरी इंस्ट्रक्शन है, अगर आपको सेंसर ग्लूकोज और ब्लड ग्लूकोज में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रही है, ये फ्री स्टाइल लिब्रे में आप देख सकते हैं. अगर फ्री स्टाइल लिब्रे में आपका वैल्यू है 240 और आप ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं स्ट्रिप का वजह से, उसी समय में आपका ब्लड ग्लूकोज का वैल्यू है 100, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है. तो उसी समय में कंपनी पर्सन को पूछ लीजिए और सेंसर को आप चेंज करना पड़ेगा. और सेंसर्स आप कब यूज करना पड़ेगा? मिनिमम एज फॉर यूज है 2 इयर्स, मतलब जो कंपनी तरफ से बोल रही है. मतलब ISPAD का रिकमेंडेशन, कोई भी टाइप 1 डायबिटीज शुरू की तो सेंसर से शुरू करना पड़ेगा, वही है रिकमेंडेशन.
और एज बोलते हैं ग्रेटर देन 5 इयर्स और 6 इयर्स को आप यूज कर सकते हैं। और ये कंपैरिजन क्या है जी, मतलब ये सारी ग्लूकोज सेंसर्स आपको अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। डेक्सकॉम G6, डेक्सकॉम G5, गार्डियन 3, एनलाइट और एवरसेंस, ये सारी रियल टाइम ग्लूकोज कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग होते हैं। फ्री स्टाइल लिब्रे, मैं फ्री स्टाइल लिब्रे 2+ का बात नहीं करती हूँ, फ्री स्टाइल लिब्रे का बात करती हूँ। ये आपका फ्लैश ग्लूकोज मॉनिटरिंग है। तो क्या कारण में आप यूज कर सकते हैं, मतलब मिनिमम एज फ्री स्टाइल लिब्रे में बोलते हैं 4 इयर्स, ग्रेटर देन 4 इयर्स। डेक्सकॉम सारी वाली 2 इयर्स का ऊपर आप यूज कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं यानी नहीं, क्योंकि डेक्सकॉम आप पेट में डालते हैं, इसी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, मगर फ्री स्टाइल लिब्रे आप यूज कर सकते हैं। और सेंसर का यूसेज फ्री स्टाइल में 14 डेज, लिब्रे 2+ एडवांस वर्जन में 15 डेज होते हैं, और डेक्सकॉम सारी सेंसर को 7 डेज ही यूज कर सकते हैं। और फ्री स्टाइल लिब्रे में आप कैलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, मगर डेक्सकॉम G6, G5 ये सारी सेंसर में आप कैलिब्रेशन खुद को कर सकते हैं। और आपका जो अलाउस ऑप्टिमल कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन मतलब मेरे सेंसर का ग्लूकोज और फ्रीज मतलब जो ब्लड ग्लूकोज का वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होते हैं, मतलब सारे सेंसर में। फ्रीस्टाइल लिब्रे में आप खुद को देखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वंस इन 3 डेज आप देख लीजिए। कब देखना है? प्री मील्स, मील्स खाने के पहले आप एक बार स्ट्रिप्स में चेक कीजिए, और उसी समय में सेंसर को चेक कीजिए फ्रीस्टाइल लिब्रे में है तो। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फ्रीस्टाइल लिब्रे, डेक्सकॉम ये सारी सेंसर्स में ट्रेंड एरोज आते हैं। ट्रेंड एरोज क्या है मैं और फ्यूचर स्लाइड्स में बोल दूंगी। और अलार्म है यानी नहीं, सारी रियल टाइम सेंसर्स में आपको अलार्म होते हैं, मतलब आपका शुगर ज्यादा हो रहे हैं तो एक अलार्म आएगी, कम हो रहे हैं तो एक अलार्म आएगी। लिब्रे में वो प्रोविजन नहीं है, मतलब लिब्रे 2+ में आपका वो प्रोविजन आ रही है। और रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग लिब्रे 2+ में है, और सारे सेंसर में है, मतलब लिब्रे में नहीं है। और लिब्रे आपको इंसुलिन पंप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती। लिब्रे 2+ जो बोल रही है इंसुलिन पंप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वैसा ही। और सारे सेंसर डेक्सकॉम, डेक्स G5, गार्डियन, एनलाइट, एवरसेंस, ये सारे मतलब एवरसेंस कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, गार्डियन और डेक्सकॉम आप पंप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सुपर्णा। ओके, तो यही बोल रही थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, मतलब मेरी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन के अंदर एक फ्लूइड होते हैं। अब जैसा अगर आपको अब्रे मतलब जो इंजरी हो गई है, स्किन निकल गई है, एक वाइट कलर का फ्लूइड आएगी, वही बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये सेंसर आपको अब्डमन यानी आर्म में आप रख सकते हैं। वो सेंसर कैसा सेंस करेगी? जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ग्लूकोज ऊपर नीचे आने से सेंस करेगी। और ये जो ग्लूकोज का रिपोर्ट्स 5 to 15 मिनट्स आपको चेंज होते ही रहेगी। और ये जो फिंगर प्रिक का, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, मैं जैसा प्रीवियस बोल रही थी, अगर आपको लो शुगर है और सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आप चेक करना ही पड़ेगा, यानी उतना ज्यादा नहीं चेक करना है, मतलब जो एडजस्ट हो जाएगी आपको। नेक्स्ट स्लाइड। तो लिब्रे रीडर में आपको क्या क्या आते हैं? पहला चीज है आपको 288 रीडिंग्स। सेंसर डालने से आपको उतना पेन नहीं होते हैं। और लिब्रे 2+ आपको अभी एक्यूरेट, स्टेबल और कंसिस्टेंट रीडिंग आते हैं। ट्रेंड आते हैं, मतलब आपका ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वैसा ट्रेंड होते हैं। अलार्म होते हैं, जब आपका शुगर ज्यादा गई तो आपका अलार्म होते हैं, कम होगी तो अलार्म होते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको मिलते हैं आपका एजीपी का रिपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये ट्रेंड एरो क्या है?
अगर आप रीडर हैं तो ये ट्रेंड एरो के साथ आपको आते हैं, यानी आपका मोबाइल भी आप देख सकते हैं अगर आप शुगर का फ्लैशिंग चेक करते हैं। अगर स्ट्रेट एरो है तो आपका शुगर इंक्रीज नहीं होते हैं, डिक्रीज नहीं होते हैं, स्टेडी ग्लूकोज आप मेंटेन कर रही हैं। अभी स्लाइटली इंक्रीज्ड एरो, वो स्लोली आपका ग्लूकोज ज्यादा हो रही है। स्ट्रेट एरो आपका शुगर बहुत पीक से शुगर ज्यादा हो रही है। टू एरोस रैपिड राइजिंग, आपका शुगर बहुत ही ज्यादा फास्ट से हो रही है। ट्रेंड एरो स्लाइटली डाउनवर्ड्स, मतलब आपका शुगर धीरे धीरे लो हो रही है। फास्ट मतलब स्ट्रेट डाउनवर्ड्स, मतलब आपका शुगर फास्ट से कम हो रही है। दो एरो है तो रैपिड से आपको कम हो रही है, मतलब बहुत ही कम हो रही है, वैसा ही रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। यही है एजीपी आपको पढ़ने के लिए रिपोर्ट। अगर आप एजीपी के मतलब एजीपी आपके पास है, सेंसर आपके पास है, तो पहला वाला जो फर्स्ट पेज का रिपोर्ट ही मैं निकल दिया है। उसमें क्या क्या है आपको, पहला चीज है ग्लूकोज रेंज। ग्लूकोज रेंज 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट टाइम इन रेंज बोलते हैं। टाइम इन रेंज मतलब आपका शुगर 70 का कम नहीं हो सकते हैं, 180 का ऊपर नहीं हो सकते हैं। जो ग्लूकोज 70 to 180 से आप मेंटेन कर रहे हैं तो वही है टाइम इन रेंज। अगर बिलो टाइम इन रेंज मतलब टीबीआर, टीबीआर में दो चीज होते हैं। टीबीआर ये मतलब 70 का नीचे, टीबीआर बी मतलब 54 का नीचे। जैसा मैं बोल रही थी, स्लो एरो डाउनवर्ड्स हो रहे हैं तो 70 का कम, दो एरो हो रहे हैं तो 54 का कम। और सेकेंड टाइम अबव रेंज, अगर स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं तो 180 का ऊपर, दो एरो मार्क पीक से ले रहे हैं तो 250 का ऊपर। ये है टाइम इन रेंज। ये बोल देंगी मतलब वो जो मतलब आज अब डाल दिया है, 2 दिन में कितना टाइम इन रेंज हो रही है, कितना टाइम अबव रेंज हो रही है, कितना टाइम बिलो रेंज हो रही है, ये सारी चीज आप ये ग्लूकोज रेंजेस में आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड है एवरेज ग्लूकोज, पूरा दिन में मेरा शुगर कितना हो रही है, वही है एवरेज ग्लूकोज। 24 आवर्स के लिए कैसा मैं मेंटेन कर रही हूँ, वही है एवरेज ग्लूकोज। और एक चीज है ग्लूकोज मैनेजमेंट इंडिकेटर, GMI। ये वाला चीज क्या है, मतलब ये आपका HbA1c का सिमिलर, मतलब सिमिलर टू HbA1c। जैसा हम बोल रही हैं 14 मतलब 2 to 3 months का एवरेज है HbA1c, जैसा आपका 14 डेज का एवरेज, 7 डेज का एवरेज, वही बोलते हैं GMI, ग्लूकोज मैनेजमेंट इंडिकेटर। और एक चीज है ग्लूकोज वेरिएबिलिटी। ग्लूकोज वेरिएबिलिटी क्या है, मतलब अभी मेरी ग्लूकोज मतलब जो क्या बोलते हैं कितना टाइम में रखते हैं, कितना टाइम में नहीं है, वैसा लेकर टाइम इन रेंज का कंपेयर करने के बाद मुझे कितना वेरिएंस होते हैं, वही है ग्लूकोज वेरिएबिलिटी। उसके नेक्स्ट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर ग्रीन में आपका 70% का ऊपर रखना पड़ेगा, वही है टाइम इन रेंज। और टाइम बिलो रेंज शुड ऑलवेज बी लेस देन 0%, यानी आपका जो 2 to 3% का कम होना चाहिए, वो रेड कलर में देते हैं। डार्कर रेड है वेरी लो ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद येलो कलर होते हैं टाइम अबव रेंज, ये 20% का कम होना चाहिए, यही है येलो कलर रेंज। और बहुत ज्यादा ब्लड शुगर है ऑरेंज कलर, ये होना चाहिए 5% का कम, वही है ग्रेटर देन 250। ये सारी चीज
आपका जो एजीपी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इंडिविजुअल रीडिंग जब मैं चेक करती हूं, आपका जो डेली पैटर्न्स ऐसा होते हैं, ये सारी चीज जैसा टाइम इन रेंज 70 to 180। नेक्स्ट टाइम अबव रेंज, जब आप 180 का ऊपर जा रहे हैं तो येलो कलर में आएगी वो टाइम अबव रेंज। नेक्स्ट रेड कलर में आते हैं, जब आपका शुगर बहुत कम हो रहे हैं तो टाइम बिलो रेंज वो रेड कलर जैसा होते हैं। और इस चीज में आप तीन चीज आप एंटर कर सकते हैं। जैसा मैं बोल रही थी, एवरेज ब्लड ग्लूकोज वो 24 आवर्स में कितना मेंटेन कर रही हूँ, वही है 140 जब आपका एवरेज ब्लड ग्लूकोज। अगर आपको खाने का कार्बोहाइड्रेट्स पता है तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं, वही है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, और जो ग्राम्स में आप एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप कितना इंसुलिन यूज करते हैं वो भी आप एंटर कर सकते हैं। तो उसी समय में जब आपका जो रिपोर्ट डॉक्टर साहब निकलते हैं, कितना इंसुलिन आप बीच में ले लिया है करेक्शन डोज जैसा, यानी कितना इंसुलिन आप सुबह दे रही हैं फास्टिंग में, लंच का पहले, ये सभी देख सकते हैं। और ये मैच कर भी सकती हूँ, हम मैच कर सकते हैं पूरा दिन में मैं क्या क्या करती हूँ, वो भी आप एंटर कर सकते हैं वो ऐप में आपको। तो जब डॉक्टर साहब आपका जो शुगर रिपोर्ट निकालते हैं, उसी समय में वो को रिलेट करते हैं, ओके आज आप कार्बोहाइड्रेट इतना ले लिया, इसी के लिए इंसुलिन इतना लेना पड़ेगा, यानी आप कार्बोहाइड्रेट अभी इतना ले लिया है तो इंसुलिन में ज्यादा लेना पड़ेगा। और रात में मुझे नींद में कम हो रही है तो रात वाला इंसुलिन में कम करना पड़ेगा। ये सारी चीज आप खुद को देख सकते हैं और खुद को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के लिए ये कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ही यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये वाला रिपोर्ट आपको और एक मैं बताती हूँ। जब आपके पास लिब्रे का वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसा मैं बोल रही थी, एवरेज ब्लड ग्लूकोज कैसा लेते हैं, 2 PM में कितना है, 6 PM में कितना है, 9 PM में कितना है, उसका अल्गोरिदम का मीन वो लेते हैं एवरेज ब्लड ग्लूकोज। और टाइम इन टारगेट, टाइम इन रेंज कैसा मेंटेन करते हैं ना, मैं कितना ज्यादा होगी तो उसका अल्गोरिदम का मीन परसेंटेज में आएगी। और लो ब्लड ग्लूकोज वैसे ही कितना ज्यादा, मतलब जो सुबह से रात तक कितना लो हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, 1 टाइम हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, तो टाइम इन रेंज का 100 है तो टाइम इन रेंज में मुझे 70% में टाइम इन रेंज में रखना पड़ेगा, तो मुझे 75 आ रही है। और 3 टाइम में लो शुगर हो गई, यानी 4 टाइम मुझे हो गई तो 4%, सो 74% मुझे होगी। बाकी सभी मैं टाइम अबव रेंज में मेंटेन कर रही हूँ। तो ये वाला चीज आपको समझ में आते हैं जब आपका पास सेंसर है तो। और आप और एक चीज भी देख सकते हैं, ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब 14 डेज में सुबह से रात तक मुझे कितना फॉल हो रही है, कितना ऊपर में हो रही है, वो भी देख सकती हूँ मैं। और डेली पैटर्न्स भी देख सकती हूँ मैं। और सेंसर का यूसेज, आप कितना बार स्कैन की, कितना बार आप सेंसर का डेटा कैप्चर की, ये सारी चीज आप एक ही सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज एन होमवर्क, सो आई वुड वांट, मुझे पार्टिसिपेंट्स बात करना चाहिए। ये एक एजीपी का रिपोर्ट है। मुझे एक पार्टिसिपेंट अभी तक मैं क्या ली, ये फर्स्ट पेज, मतलब फर्स्ट डे का ले लूंगी हम, सैटरडे 4 अक्टूबर, वो देखने के बाद बोल दीजिए इस सेंसर आपको समझ में क्या क्या समझ में आते हैं, पार्टिसिपेंट बोल दीजिए ना।
यही है इंटरेक्टिव सेशन, आप बात कर सकते हैं। ये सेंसर को I रिपोर्ट request है। all the participants, please unmute. हम Hello. 4 अक्टूबर का रिपोर्ट पढ़ती हूँ, ये देखने के बाद आपको क्या समझ में आते हैं? তোমরা আনমিউট করে উত্তর দিতে পারো ম্যামকে। ম্যাম তো জিজ্ঞাসা করছেন, উত্তর দাও। Means you can tell me in Bengali also. I'll have Suparna translated for me. ইয়েস ইয়েস ইয়েস, তোমরা বাংলাতে উত্তর দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যালো। हाँ मैम, क्वेश्चन क्या किया वो फिर से करेंगे आप? 4 अक्टूबर का रिपोर्ट देख लीजिए, उसको देखने के बाद आपका इंप्रेशन क्या है? इस पेशेंट को आप, अगर यही है आपका रिपोर्ट एग्जाम्पल, ये देखने के बाद आपका इंप्रेशन क्या है 4 अक्टूबर का? कैसा पढ़ते हैं आप? অ্যাট ফার্স্ট মানে প্রথমে খুব বেশি ছিল, মানে 279, देन हम्म धीरे धीरे घट वो कम होते जा रहे थे, और फिर हम्म से जब देख एट लास्ट 252 263, और फिर से एट द एंड ऑफ द चार्ट वो फिर से बढ़ रहे थे, लाइक 252 और 263, मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। दिन का तो ये देखने के हाँ। बाद आप क्या करते हैं? क्या रिजल्ट्स आप इन्फर करते हैं? जैसा आप बोल रही हैं 12 o'clock ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रही है, 4 o'clock में कंट्रोल का जैसा आ रही है, फिर से ज्यादा हो रही है। तो ये देखने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन आप क्या करेगी अगर यही है आपका रिपोर्ट? First of all, insulin dose correction and meal pattern changes. वेरी गुड, अप्रिशिएबल, सीरियसली 100%, ब्यूटिफुल। बोल दीजिए, इंसुलिन करेक्शन में क्या करते हैं आप? इंसुलिन करेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, बेसल बेसल डोज को चेंज करना पड़ता है, और देन बोलस डोज को, मतलब जो बेसलॉग और इंसुलिन ओके, आर होता है। मेरी क्वेश्चन है बेसल को क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्यों मैं बोलस नहीं चेंज करती हूँ? बिकॉज बेसल जो इंसुलिन है वो हमारे बॉडी में जो रेगुलर जो शुगर का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल रखता है, इसलिए। वेरी गुड, ओके। मैं समराइज करूंगी आपको। जैसा आप बोल रहे थे ये सीजीएमएस, आप देख लीजिए 12 o'clock ज्यादा हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे 4 o'clock कंट्रोल में आते हैं, 6 o'clock टाइम इन रेंज, उसके बाद 10 o'clock ज्यादा हो रही है, 12 o'clock भी ज्यादा, 2 o'clock में थोड़ी सी कम होते हैं, उसके बाद वैसे ही मेंटेन होते हैं, 4 o'clock ऊपर हो रही है, और ऐसे ही ऊपर 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 जाकर रात में ज्यादा होते हैं। जैसा आप बेसल को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बोलस का डोज मैंने जो लिखा हुआ है नोवो रैपिड, नोवो रैपिड कितना समय तक अब मेरे शरीर में होगा? मैक्सिमम 2 आवर्स, यानी मैक्सिमम 3 आवर्स, उसके बाद नहीं। तो मैं डिनर का पहले नोवो रैपिड ले रही हूँ, तो 8 o'clock में नोवो रैपिड ले रही हूँ, तो मैक्सिमम 10:30 11 तक एक्ट करेगी, उसके बाद मेरा लैंटेक्स एक्ट करेगी। तो मैं क्या करना पड़ेगा, मतलब जो मतलब 2 o'clock में लो नहीं हो रही है, फिर भी 12 o'clock में ज्यादा है, तो लैंटेस एक यूनिट एडजस्ट कर सकती हूँ। ये पहला इंप्रेशन, वेरी गुड। सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 o'clock 8 o'clock नॉर्मल, मतलब नॉर्मल मतलब मुझे 6 o'clock 8 o'clock टाइम इन रेंज में है, उसके बाद ज्यादा हो रही है,
तो मैं बच्चे को पूछना पड़ेगा 6 o'clock दूध पी रही है, यानी क्या ले रही है, क्यों 10 o'clock ज्यादा हो रही है, मैं कुछ 8 o'clock ली तो 10 o'clock 1.5 hours के बाद ज्यादा होते हैं। तो मैं सोचना पड़ेगा, फूड में एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी मेरी बोलस डोज को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलती हूँ 8 o'clock मेरी बच्चे स्कूल जा रही हैं, तो इसी के लिए मैं उनको 2 इडली दिया, उसके बाद वो चली गई, तो 2 इडली का जगह में, मतलब 2 इडली के साथ मैं प्रोटीन इंक्रीज कर सकती हूँ, एक अंडा दे सकती हूँ, यानी एक वेजिटेबल स्प्राउट्स दे सकती हूँ, यानी एक रोटी, मतलब वैसा आप ले रही हैं, 2 रोटी ले रही हैं, 2 रोटी के साथ एक अंडा ले सकते हैं, यानी एक वेजिटेबल सलाद ले सकते हैं। जो 10 o'clock का ब्लड शुगर उतना ज्यादा नहीं है, मतलब 239, और वो जो नीचे आपको 170, तो ऊपर का ब्लड शुगर क्या है, नीचे का ब्लड शुगर क्या है, ऊपर का ब्लड शुगर हम ये जो बोल रही है एवरी 15 मिनट्स चेक करेगी, ठीक है ना। तो 8 10 से मैम मुझे 170 का रीडिंग कहाँ पर है आप बोल रहे थे? जो ऊपर में 239, हाँ 4 हाँ हाँ। अक्टूबर देख लीजिए, 10 o'clock के नीचे 10 o'clock से 12 o'clock तक आपको 4 रीडिंग हो रही है, ऊपर 2 रीडिंग, नीचे 2 रीडिंग, हाँ हाँ, टू सुन लिया थर्टी मैंने। नाइन 236 170 204। समझ में आई? हाँ आप हाँ देख मैम। रहे हैं? हाँ हाँ मैम। ओके, ये 4 रीडिंग क्या है, ऊपर का रीडिंग्स हैं, मुझे 10 o'clock से 12 o'clock तक कितना हाई हो रही है उसका एवरेज, नीचे का रीडिंग्स है 10 o'clock से 12 o'clock कितना मिनिमम होते हैं उसका एवरेज। समझ में आई? हाँ मैम। तो मुझे बात करना चाहिए 8 o'clock में क्या लेते हैं, तो 10 o'clock का ऊपर हो रही है, ये वाला अंडरस्टैंडिंग मुझे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में मिलते हैं। तो 8 o'clock में अगर मैं 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी लेने के बाद मैं जा रही हूँ, यानी 2 रोटी मुझे आलू का सब्जी ले रही हूँ, तो मैं क्या करना पड़ेगा, 2 रोटी के साथ एक अंडे, यानी 2 रोटी के साथ एक वेजिटेबल सलाद, थोड़ी सी वेजिटेबल ज्यादा कीजिए, ये पहला वाला चीज आप ट्राई करेगी। अगर उसके बाद भी 10 o'clock ऐसे ही है, तो थोड़ी सी बोलस डोज इंक्रीज कर सकते हैं आप, नोवो रैपिड को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जब 12 o'clock होते हैं, लंच का पहले कितना है मुझे देखना पड़ेगा। अगर लंच का इंसुलिन मुझे ज्यादा करना है, यानी नीचे करना है, तो 12:30 माई चाइल्ड इज हैविंग लंच, मेरे चाइल्ड 12:30 लंच ले रहे हैं, तो 11:55 में चेक करेगी। अगर लंच के पहले 236 हैं, तो लंच का इंसुलिन 1 यूनिट इंक्रीज कर सकते हैं, स्लाइडिंग स्केल है 1 यूनिट। उसके बाद 1.5 hours के बाद वो नीचे हो रहे हैं यानी नहीं, मैं देखना पड़ेगा। ये कर सकते हैं। फर्स्ट, चेंज आपका फूड पैटर्न को चेंज कीजिए और ट्राई कीजिए। सेकेंड, बोलस डोज को इंक्रीज कीजिए और ट्राई कीजिए। थर्ड, अगर ये दोनों नहीं कर सकते हैं, मुझे वो बच्चे स्कूल में है, ये करेक्शन डोज आप 11:30 ले सकते हैं। करेक्शन डोज मतलब टारगेट मतलब करंट ब्लड ग्लूकोज माइनस टारगेट ब्लड ग्लूकोज डिवाइडेड बाय इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे 11 o'clock एक करेक्शन डोज कर सकते हैं।
करेक्शन डोज करने के बाद लंच का पहले चेक कीजिए। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में आएगी। और लंच के बाद 4 o'clock उसी समय में पूछना पड़ेगा आप क्या स्नैक्स ले रही हैं, क्यों 6 o'clock ज्यादा हो रही हैं, यानी एक्सरसाइज कर रही हैं, एक्सरसाइज के बाद भी थोड़ी सी शुगर ज्यादा होते हैं। तो ये सारी वाली चीज आप कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में देख सकते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग में नहीं देख सकते हैं। इसी के लिए अच्छी तरफ से आप पढ़ने के बाद आपका जो एजीपी रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, आप धीरे धीरे आप इंसुलिन एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं मुझे पूछने के लिए? सुपर्णा, टेक इट टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज करने के बाद भी क्यों वो जो ब्लड ग्लूकोज है वो इंक्रीज माने क्यों बढ़ रहे हैं वो मतलब एक्सरसाइज করার পরেও কেন বাড়ছে আর কি? ओके, एक्सरसाइज जब आप करते हैं आपका मसल्स एनर्जी के लिए क्रेविंग होते हैं, मतलब आप इमीडिएटली सुपर्णा, आई थिंक यू नीड टू ट्रांसलेट दिस इन हिंदी। See, once we start doing exercise, our muscles will be craving for energy, so there will be an immediate blood glucose rush. So immediately after exercise, when you see, it will be high, but the same blood glucose will fall after say 1.5 hours or 3 hours. That is why when kids are playing for 1 hour non-stop without anything in the stomach, like no snacks in the evening, when you check their pre-dinner, it will be very low, or there are chances that they'll have a low sugar in the midnight. So this you can analyze it in the CGMS. পড়েছো, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম। ओके ओके। So ये सारी चीज आपको CGMS में देख सकते हैं। और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सुपर्णा। ये ओके, वो वैल्यूज के साथ था, ये वैल्यूज के साथ नहीं है। हम 29 सितंबर का रिपोर्ट्स देख लूंगी हम। आप बता दीजिए 29 सितंबर रिपोर्ट्स देखने के बाद आपका व्यूज क्या है? ये वाला पेशेंट क्या करते हैं? अगर ये रिपोर्ट आप देखते हैं तो एक पैटर्न आप देख सकते हैं। ये पेशेंट को एवरी डे 12 o'clock उनका ब्लड शुगर ज्यादा हो रही है, और रात में देख रहे हैं तो मतलब आफ्टर 6 o'clock, 8, 10, 12 o'clock, so 6, 8, 10 o'clock के बाद ज्यादा हो रही है। ये पैटर्न आपको देख रहे हैं यानी नहीं? तो पेशेंट को हम बात कर सकती हूँ। ये वाला पेशेंट क्रिकेटर है, क्रिकेट प्ले सकते हैं, प्ले कर रही है, मतलब क्रिकेट का कोच। तो वो क्या करते हैं ना, 6 o'clock शुरू की तो 11 o'clock तक वो क्रिकेट प्ले कर रही है। उसके बाद आने के बाद सीधा थाइज में इंसुलिन देते हैं। तो एक्सरसाइजिंग मसल में इंसुलिन देने के बाद उनका शुगर अगर आप देख लिया तो 12 o'clock के बाद, मतलब जो 4 o'clock में बहुत ही लो होते हैं। तो लो होने का जगह में वो क्या करते हैं, कुछ चीज खाने के लिए ज्यादा ले रही है शाम को, और स्नैक्स सभी लेते हैं। तो रात मतलब जब सोते हैं ना उसी समय में थोड़ी सी ज्यादा होते हैं 11 o'clock। ये सारी चीज ऐसा हम CGMS देखने के बाद आपको
समझ में आते हैं। इसी के लिए सेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट। कुछ डाउट्स हैं मुझे पूछने के लिए, आपको समझ में आई या नहीं? मैम आपने बोला कि ये प्लेयर जो है और कोच जो है ये 11 o'clock तक क्रिकेट खेलते हैं, हम्म। और 12 o'clock जब बजते हैं उसका ब्लड ग्लूकोज ग्राफ हाई रहता है। ईच ग्राफ में वो दिखा जा रहा है। तो हम्म। जब वो इंसुलिन लेते हैं हम्म। खाने के पहले, तब तो वो घट चुका है, माने डिक्रीज कम हो हो चुका रही है। है। हाँ। तो 12 o'clock के समय में क्यों उसका बढ़ रहा है एक्सरसाइज क्योंकि के बाद? मैं एक्सरसाइज करने के बाद मेरे मसल्स एनर्जी को क्रेविंग होते हैं, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एक्सरसाइज करने के लिए, प्ले करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो इमीडिएटली जब मैं एक्सरसाइज करने के बाद मुझे एनर्जी के लिए ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है, मेरे लिवर से ज्यादा होते हैं, मैं भी खाती हूँ, तो उसी समय में मेरा ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होते हैं। ओके अगर वो लेने के बाद मतलब जो जैसा आप देख रहे हैं, तो अगर मैं क्रिकेट प्लेयर हूं, ठीक है, क्रिकेट प्ले होने का पहले मैं कुछ ड्रिंक जैसा लेती हूँ, बस उतना ही, क्योंकि मुझे खेलना है। क्रिकेट करने के बाद मतलब जो मैं एक्टिव प्लेइंग करने के बाद मैं कुछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। आप जैसा समझ लीजिए, अगर आप कंटिन्यूस नॉन स्टॉप 1 आवर जिमिंग करते हैं, मतलब वेट ट्रेनिंग लिया, कोर एक्सरसाइज लिया, ट्रेडमिल में गई, साइकिलिंग गई, सब भी करते हैं, करने के बाद जब आप फिनिश की तो आपको भूख लगते हैं यानी नहीं? कुछ खाने के लिए मन होते हैं। हाँ। अगर फिटनेस फ्रीक हैं तो प्रोटीन लेते हैं। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब अ, मतलब जो नॉर्मल जस्ट जिम गोयर, वो क्या लेते हैं? ब्रेड सैंडविच, यानी फ्रूट, यानी कोई लोग जैसा नॉर्मल ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो भी करते हैं। तो उसी समय में क्या होते हैं? इमीडिएट रिलीज ऑफ ग्लूकोज। मगर उसी समय में मैं इंसुलिन लिया है, तो एक्सरसाइज का इमीडिएट मतलब मैं एक्सरसाइज अभी 11 o'clock तक करती हूँ। 11 o'clock टू 12 o'clock मुझे थोड़ी सी ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे मसल्स को एनर्जी चाहिए, मुझे भूख लग रही है, मैं खा रही हूँ। मगर 12 o'clock के बाद जब आप 2 o'clock 3 o'clock देख रहे हैं, तो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि मेरे इंसुलिन भी एक्शन किया, मेरे मसल भी ग्लूकोज को ले लिया, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है। इसी के लिए आप जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के पहले मतलब जो एक्सरसाइज करने के बाद पहले आप एक बार शुगर चेक कीजिए। यानी आप वही इंसुलिन ले लिया तो मतलब मैं रेगुलर जो स्टैंडर्ड डोसेज में लिया, तो एक्सरसाइज करने का 2 घंटा यानी 3 घंटा के बाद एक बार चेक कीजिए। अगर आपको लो हो रहे हैं तो एक स्मॉल कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स ले सकते हैं, यानी प्रोटीन स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट, यानी स्प्राउट्स, ड्राई नट्स, यानी एक ग्लास दूध भी ले सकते हैं। ओके कुछ मैम। डाउट्स हैं आपको? नो, अब समझ आया उसको क्या। और जब आप एक्सरसाइजिंग मसल में इंसुलिन ले लिया तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं टेनिस कर रही हूँ, टेनिस के बाद मैं थाइस में अगर इंसुलिन लिया तो रैपिड अब्जॉर्प्शन होते हैं,
तो इसी का वजह से भी आपका लो शुगर हो सकते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइजिंग मसल में इंसुलिन नहीं लेना है आप। तो सीजीएमएस देखने के बाद मुझे कैसा इंसुलिन डोसेज एडजस्ट करना है, कैसा मुझे खाना है, वो सारी चीज आप खुद को देख सकते हैं। और आप एक पैटर्न भी देख सकते हैं, मुझे कौन सा समय में ज्यादा हो रही है, कौन सा समय में अंदर में है। तो ज्यादा होने का समय में मैं क्या करती हूँ, मैं इंसुलिन ठीक ने नहीं ले रही हूँ, मैं ठीक से नहीं खा रही हूँ, कुछ स्नैक्स एक्स्ट्रा ली हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे वाली चीज मुझे सीजीएमएस देखने के बाद मुझे समझ में आएगी। यानी आप न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिस, मुझे हनीमून फेज दिखा रही है, तो 3 o'clock मुझे लो शुगर हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, नाइट का बेसल एडजस्ट करना पड़ेगा, ये सारे वाली चीज मुझे सीजीएमएस में पता चलते हैं मुझे। इसी के लिए सेंसर इज ऑलवेज 1 step अहेड ऑफ सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग। मगर सेंसर को लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्योंकि डिविएशन हो सकते हैं। इसी के लिए 2 दिन यानी 3 दिन का एक बार स्ट्रिप्स में भी चेक कीजिए और सेंसर का ग्लूकोज भी चेक कीजिए उसी समय में, और डिविएशन कितना हो रही है वो देख लीजिए। यानी आपको बार बार लो शुगर हो रही है मगर आपका सिम्टम्स नहीं है, उसी समय में भी स्ट्रिप्स को भी चेक कीजिए और सेंसर को चेक कीजिए, उसके बाद एक्शन ले लीजिए। यही लिमिटेशन को आप देखना पड़ेगा बस। मुझे कुछ डाउट्स हैं पूछने के लिए। एनी डाउट्स? Thank you, ma'am. Thank you. It was such a wonderful session. পার্টিসিপেন্টসের রিকোয়েস্ট করছি, কোনো কোশ্চেন থাকলে, কোনো কোয়ারিজ থাকলে তোমরা ম্যামকে জিজ্ঞেস করতে পারো। Let me check 1 minute if there is any question in Facebook or WhatsApp. अगर आपको मुझे क्वेश्चन पूछना है तो सुपर्णा के साथ दे दीजिए। मैं ज्यादा वक्त ली, 1 घंटा हो गया मुझे। आई मीन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ, सो आई एम रियली सॉरी। No, no, it's okay. তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে? অরিত্র? না, বুঝলাম, ওই জায়গাটা তো বুঝলাম। না, আর কোনো প্রশ্ন নেই। আহ, Till now, there is no question in our Facebook chat box. I request all the participants and audiences, if you have any question regarding this topic and दूसरे टॉपिक पर भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा, तो प्लीज राइट डाउन इन आवर फेसबुक चैट बॉक्स. We will give reply you after a few minutes. Thank you, ma'am. Thank you. Before थैंक finish यू, the थैंक यू। session, I want to announce something. Sorry. Is it visible?
This is a new course, new program for diabetes management, diabetes self-management. We already announced in our previous program course name Art of Better Living with Diabetes. And I request all the audiences, if you have any interest, please call us, or please mm, block your seat fast. We have three session: English, Bengali, and Hindi. So please enroll and learn diabetes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, Kajal. Thank you so much, Subarna. Thank you, participants. Have a great night. Good night, ma'am. Good night.